micrometer with the help of micrometer. And if you want to compare the micrometer with vernier caliper, then there is one thing you kept in your mind, that as per the least count point of view, we are define that which is more precise. Okay, so initially we have to find the least count including its error. Okay, we assume initially that there is no error, and if we want to use this kind of micrometer, okay, though on that time, how to find the least count? That is the first thing. Initially, you have to just check that this road and this, what is the instrument, what are the different kind of parts that I discuss later. But this instrument, this part should compulsory when it contact with this, then on that time this zero is matched with this horizontal line. Okay, then we can consider that it may be in the proper without any error, or we can say that zero error is there. Now how to find error means, whenever we talk about the error, we have to remember one thing, that uh, smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale. Initially we have to measure here. You can just, when you rotate this thing, it's very easily shown at here. uh, from 1 to 2 division, if you see the first division, before that there is one also another division is there. Okay, it is called as a, we are considered that it may be the division of between these two, the 30 and it may be 29, so it may be 1 mm, but in center of that there is another division. So we are not directly find 1 mm here. Here we are find smallest division, it may be, okay, there is total number of division that given to you at here, that may be, you can see it here, 0, 5, 10. You can just see in the clockwise direction, then 0, 5, 10 is there, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So 0.5 smallest division on main scale, total number of division on vernier scale, so it is equal to 0.5 divided by 50. So what is the answer we are getting? You just calculate in your calculator, or you just take it in your mind, that 0.5 divided by 50. So you are get the dimension, that is 0.001. Okay, so that is the least count of one micrometer. Okay, हम इस तरह से इसकी least count find करेंगे. Now how we have to use? Before use of micrometer, you should know about all kind of parts. यहाँ पे, as I discussed earlier, that this is the simplest type of micrometer. So you should know that which term is used by which kind of terminology. Okay, so if you see in here, then yeah, yes, this is the proper figure of micrometer. You can see here the steel rod, the smallest steel rod is there. It is called as an anvil, which may support this spindle. This is the longest portion of the shaft, which is called as a spindle. Whatever we have to prepare the object, or whatever the object is there, which we have to insert it here, and we have to just give the rotation with the help of this part. After that, if it may be touched properly, then we have to lock with this nut. So it is called as a lock nut. This frame, as we know that this frame is shaped like U, so it is called as a C frame. At the end, there is one point is given to, that is called as a ratchet. What is the function that I discuss later? Before that, you have to remember that this is called as a thimble. You have to remember the word. This is called as a thimble, and this portion, this circle portion, is called as a slip. Okay, and this portion, it is called as a null grip, or it may be nulling by null tool. So it is called as a null grip. Now I just mentioned, suppose I insert one part here and I rotate this. Okay, if it may be properly
uniformly adjust, then what we have to do in vernier caliper, we are just trying to give proper pressure. But here ratchet is there. So if you feel initially that, or if you sense that the part may be touch either on the anvil side or in the spindle side, then you just use this ratchet. After, if you use the ratchet give you the proper or uniform pressure. Due to that, the reading or the pressure which may be applied for that, it may be the uniform pressure and we are get the proper result. Okay, this knurling is required because we know that in whenever we are in industry, when we are talking about the actual condition, then there is not all kind dry surface you are getting. Most probably due to the lubrication, our hand may be oily. This is the uh, as I mentioned earlier that importance of the how to find the list count. So it is also very important for us. So this is the basic thing. Now I discuss regarding uh, about reading, that how we have to read the micrometer. You can just A micrometer is used to take very carry precise measurements. until There are different kinds. yes. You can see here all kind of all types of micrometer it may provide to you, and the range is given to you which from 0 to 25, and the list count is provided to you initially. It means you have to not define or you have to not calculate, but every time it may not necessary that list count is given to you. Sometime it may not given, then you know that how to find the list count. 0 to 25 means the range is given to you. It may start from 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, and 75 to 100. So different kind of micrometer are provided to you. Now what we have to do, as we initially mentioned that okay, we can use this barrel or sleeve reading and measure with the help of this, and this is called as a thimble. So this is the basic main part to measure any kind of dimension. So these two parts are very important. This gripping part at where we are use our finger. Okay, so Let's stop here a minute and be sure you're with me. What do you think the barrel scale is showing right now? Hit the pause button and think about it. If you वो सब 1 mm के हैं, एंड इफ यू सीन द रीडिंग, इसके नीचे का जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं दैट इज अ 0.5, सपोज सब okay, then we are not taking 12 mm but we are taking 10, 11. This is 10, this is 11, and this is 0.5, so 11.5. okay, अगर यहाँ पे होता है 11.5, and then what we have to do that said we 12 discuss now. millimeters, you were right. If you didn't, well, there's more to life than being right all the time. Well, let's take a closer look. See, 10, 10 and a half, 11, 11 and a half, 12. Here, let's try another one. Pause the video and think about this one. Do you see it reads 14 millimeters? Good, let's move on. Let's try another one. Now this one's trickier. Pause it for a minute and see if you can figure out what the reading is. Did you say 11 and a half millimeters? See how there's a half mark showing? That counts as a half millimeter. Great. You've got the barrel scale down. Remember that we said this mic would measure down to the nearest 1/100th of a millimeter? Well, here's what that would look like on the barrel.
They don't really make marks this small because no one would be able to see them to read them. Obviously, there has to be a better way. Remember that each mark on the barrel is equal to 1/2 millimeter. Another way to think of a half is by saying 0.5. Another way is by saying 0.50 or 0.50. Now, let's put 50 marks on the thimble. As we turn it, the thimble can count from 1 to 50 for us. That means that each mark on the thimble is equal to 0.01 millimeters. Now let's put all this together and try to figure out what this micrometer is reading. First, the barrel scale, 10, 11, 12. So it's 12 millimeters plus something. The something comes from the thimble scale. Let's zoom in. 0.30, 0.31, 0.32, 0.33. So the reading is 12.33 millimeters. Now here's one for you to try. Now it's trickier. Notice the half mark is showing on the barrel scale. Let's see if you can figure out what to do with that. Did you get 11.72? If so, you're really getting this. If not, you might have missed the half millimeter mark. Let me show you. Okay, first look at the barrel. 10, 10 and a half, 11, 11 and a half. Now, write that down. Now, look at the thimble. 0.20, 0.21, 0.22. Now, write that down. Now, add them together and you get 11.72 millimeters. Okay, there's just one more small concept and we'll be done. What if one of the marks is just barely showing? Do you count it? Is it ready to be used? Here is the trick. Don't look at the mark to find out whether the mark is showing or not. Look at the thimble. You need to know if a new mark is starting or if an old mark is ending. In this example, look at how big the number on the thimble is. It's showing about 0.47 millimeters. That's a big number for the thimble. Remember, the scale only goes up to 49. Since the scale is nearing the end, it's ending, and so you don't count a mark that's barely showing. The trick is to find which side of the zero you're working on. If you're not yet to zero, it's not yet a mark. Okay, I've moved the micrometer just a little bit. Now the mark is ready to be counted because the thimble scale is starting. You see that the numbers on the thimble are small because the zero just passed by. This means that the mark is ready to be counted. Okay, so that's pretty much it. There are some micrometers that can measure even more accurately than this. They have a thing called a vernier scale on them. I can show you how to read those another time if you want. Just let me know. But for now, this should get you started. Thanks for watching. I'm Bob Welds, and these are Weldon. Okay, very clearly understand by this basic video. AB division, if they have any lecture after this, then they may leave the lecture and they may join in any other lecture. I just continue for A division, that how we have to measure the dimensions of micrometer. हेलो दोस्तों, इन्फो ट्रेड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जो है हम आपको टेक्निकल जो है सारी जो है नॉलेज जानकारी देते हैं टेक्निकल फील्ड से। तो आज मैं आपके लिए जो है एक माइक्रोमीटर लेकर आया हूँ। माइक्रोमीटर के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, इसकी बेसिक जानकारी, छोटे-छोटे जो है इसके तरीके हैं चलाने के, सीखने के, और इसके पार्ट्स के नाम, इसकी लिस्ट काउंट वगैरह मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखें शुरू से लास्ट तक, आपको जो है जरूर माइक्रोमीटर चलाना आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें,
सबसे पहले मैं माइक्रोमीटर दिखाता हूँ आपको, माइक्रोमीटर कैसा होता है। अगर आपने नहीं देखा तो ये माइक्रोमीटर है। इसके माइक्रोमीटर के सबसे पहले आपको पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए। तो मैं आपको पार्ट्स के नाम एक बार क्लियर कर देता हूँ, पार्ट्स के क्या क्या नाम है आप इसका देखें। सबसे पहले ये इसका फ्रेम होता है, फर्स्ट नंबर में इसका फ्रेम की बात चलती है। तो ये इसका फ्रेम होता है, फ्रेम के पीछे जो है आगे इसकी जो लिस्ट काउंट लिखी होती है। तो आप यहाँ देखिए लिस्ट काउंट लिखी हुई है, 0.01 मिलीमीटर इसकी लिस्ट काउंट है। और जो ये चेक कर सकता है 0 से 25 मिलीमीटर तक का जो है इसको ये आसानी से चेक कर सकता है। किसी भी जो है जो उसकी चौड़ाई जो शाफ्ट की होगी या जो है उसकी मोटाई किसी भी प्लेट की शीट की चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसके पार्ट से हम जो है पहले आपको पार्ट्स के नाम बताता हूँ। ये होता है दोस्तों फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम होता है। इसके बाद आती है हमारी एनविल। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये एनविल है, ये स्पिंडल है, ये जो इसका स्पिंडल लॉक है। इसके बाद यहाँ आती है बारी, ये होता है इसका बैरल, ये होता है इसका थिम्बल और ये होता है रैचिस स्टॉक। तो ये इसके पार्ट्स के कुछ नाम है। ये रैचिस स्टॉक है इसका। तो और इसके बाद इसकी जो है हम इसको ढंग से दिखाते हैं आपको खोल के। तो आप यहाँ ध्यान देखें, ध्यान से ध्यान दें जनाब। तो इसके जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा जो ये बैरल जो बन रहा है, इस पे जो है 1 मिलीमीटर के खाने बने होते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर। इस तरीके से जो है 25 मिलीमीटर तक जाएगा आगे। और आप देखें नीचे जो खाने होते हैं इसके, ये होते हैं हमारे 0.5 मिलीमीटर, यानी कि आधे मिलीमीटर खाने होते हैं। यानी कि ये जो है एक खाने यानी 1 मिलीमीटर के भाग को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि 0.5 इसका जो मान है। और जो इसका जो दोस्तों एक खाने का मान होता है वो कितना होता है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट कितनी है इसकी 0.01 मिलीमीटर। तो इसके जो एक खाने का मान है वो है 0.01 मिलीमीटर। तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज पता है तो आप माइक्रोमीटर को चला सकते हैं, यदि आपने कभी चला रखा हो तो। फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो है इस तरीके से जो है माइक्रोमीटर जो है जब आप कभी कंपनी में या फैक्ट्री में प्रैक्टिकल वगैरह या इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो माइक्रोमीटर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो माइक्रोमीटर से जो है कुछ भी आप चेक करवा सकते हैं। तो ये आपको चलाना जरूर आना चाहिए अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ आज दोस्तों। सबसे पहले बारी आती है माइक्रोमीटर को पकड़े कैसे। दोस्तों इसको जो हम माइक भी बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में हम जो है इसको माइक भी बोलते हैं। तो माइक को पकड़ते कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी जो लास्ट की फिंगर है इसको यहाँ पे इस तरह से डालें और इस तरीके से पकड़ें। क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी बात जो है ये बहुत कम लोग बता पाते हैं आपको, लेकिन मैं तो आपको जो है सिखाने ही आया हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा काफी कुछ आने वाली टाइम में भी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पकड़ें, ये देखिए ध्यान से, ये मैंने 2 फिंगर यहाँ डाली, एक फिंगर को यहाँ लगाएं, 2 फिंगर को फ्री रखें इसको घुमाने के लिए इसकी जो है थिम्बल को, ये इस तरीके से। तो ये छोटी छोटी बात है। अगर आप इस तरीके से पकड़ते हैं माइक्रोमीटर को, कुछ भी चेक करते हैं, तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो है स्टाइल को देख के इस तरह से देखते ही समझ में आ रहा है कि बंदे को जो है माइक्रोमीटर चलाना जरूर आता है। तो आप सबसे पहले चलाना इसको पकड़ना सीखें। अगर आपको पकड़ना आ गया तो आप माइक को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको टाइट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हम चेक कैसे करें। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आप पहले दिखाए थे, मैंने कुछ जो है टूल्स ये इकट्ठे किए हैं, मेरे पास रखे थे पुराने। तो इन्हीं को से दोस्तों मैं चेक आपको इनसे ही चेक करना बताया था, कैसे चेक करते हैं। तो अब इसकी हम थिकनेस चेक करने जा रहे हैं। ये जो हमारे पास पार्ट्स है, ये शीट का कटा हुआ पीस है, इसको जो हम इसकी थिकनेस चेक करते हैं। थिकनेस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और बताता हूँ साथ में। तो सबसे पहले इसकी जो आप एक चीज़ और देख लें कि इसकी जो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो जब आप यहाँ देखेंगे, ये जो आप ध्यान से देखेंगे जो रीडिंग है ये इस वाली लाइन से मिलनी चाहिए। तो यदि इस लाइन से मिल रही है तो क्या है, इसकी त्रुटि नहीं है, ऊपर नीचे जा रही है, वो त्रुटि का जो है फिर अलग सिस्टम लगता है। त्रुटि की मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कभी त्रुटि को कैसे ठीक करते हैं, त्रुटि को कैसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है थिकनेस चेक करते हैं, वही मैंने आपको पकड़ना बताया, पकड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो मैंने इसको लगाया यहाँ पर। अब हम दोस्तों ये ध्यान रखें, जब भी आप इसको इस तरह से टाइट करेंगे तो ज़्यादा टाइट ना करें। यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसकी जो है रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो हल्का सा जब आपको दिखे कि हाँ टाइट हो गया, तो आप जो है ना इसका रैचिस स्टॉप जो है ये वाला, इसको एक बार घुमा के देख लें। यदि ये आवाज़ कर रहा है तो समझे टाइट हो गया, ये इस तरह से आवाज़ कर रहा है यानी कि फुल टाइट है। आप इस पे जोर ना दें, कभी आप इसको घुमाएंगे तो टाइट तो हो जाएगा, और लेकिन जो है रीडिंग सही नहीं आएगी, हमारा जो एक्चुअल साइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आवाज़ इस तरह से आवाज़ करके देख लें कि आवाज़ कर रहा है, ठीक है अब ये टाइट हो गया। बाकी आप यहाँ से जो है इसका लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉक लगा देंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको रीडिंग पढ़ना बताता हूँ किस तरीके से इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब आप यहाँ देखें ध्यान से कि हम जो है यहाँ देखेंगे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 1 2। आप ध्यान से देखें, जब आप अगर आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो थर्ड वाली लाइन भी मिल रही है, दिख रही है कि दोस्तों लाइट की रोशनी कम है,
शायद आपको ना दिख रही हो, मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो है, एक मिनट रुके दोस्तों। तो आप ध्यान से देखें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, थर्ड लाइन भी दिख रही है इसकी, ये देखें यहाँ दिख रही है थर्ड लाइन। तो कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 3 मिलीमीटर जो है ये पूरा खुल रहा है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि लाइन दिख रही है, कोई नहीं, नीचे कुछ नहीं दिख रहा। तो 3 मिलीमीटर दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइन है ये नीचे जा रही है, तो ये एक खाने का मान 0.01 है, तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया, ये हो गया 3.0 यहाँ पर आ जाएगा 0.4, ठीक है। 1 2 3 4, क्योंकि ये वाली लाइन आसपास मिल रही है, तो इसको लिखेंगे हम 3 पॉइंट कितना लिखेंगे। ध्यान से देखें दोस्तों, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, मोबाइल के से दोस्तों बनाई जा रही है वीडियो, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो मोबाइल से बनाने में, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये ध्यान से देखें आप। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये अब यहाँ पे जो है ये देखें आप ध्यान से, तो ये जो है हमारा एक, ये जो हमारा 4 यानी कि 3.04 इसकी जो है थिकनेस यानी कि मोटाई आ जाएगी इस वाले शीट के टुकड़े की, ठीक है। तो इसे आसानी से इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको, और आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसको हम वापस खोलते हैं, इसका लॉक खोलेंगे सबसे पहले, और इसको हम हटा देते हैं। तो अब मैं आपको जो है इसकी जो है थिकनेस चेक कर दिखाता हूँ कितनी थिकनेस है। तो आप इसे इस तरीके से पकड़ें और इसे यहाँ से मिलाएं इस तरीके से, और इसके अंदर जो है ये डालें इस तरीके से। जब इसे खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक आ जाएगा, तो हम इसको नाप देंगे इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों बेस ध्यान रखें, बेस ज़्यादा मिलना चाहिए, मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, बेस हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये टाइट हो गया, ठीक है। तो और हम जो है और थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे करके, हाँ टाइट हो गया। ज़्यादा दोस्तों यहाँ से ना करें, यहाँ से आप करके देखते हैं, यहाँ से जो एक्चुअली जितना होगा उतना ही टाइट होगा, ठीक है। ये हम इसका लॉक लगा देते हैं, ठीक है। लॉक निकाल के इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकल रहा तो मत निकालें, ठीक है। ये हो गया इतना। अब आप ध्यान से देखें कि कितनी रीडिंग आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये देखें दोस्तों, अब भी सोचें कि कितनी बैटरी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान देखें कितना आ रहा है, बताएं मुझे। तो आप यहाँ देखेंगे ये 5 मिलीमीटर कंप्लीट, 5 के बाद 6 7 8 मिलीमीटर, तो इसकी मोटाई 100% है यही। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे 8 मिलीमीटर के बाद कितना आ रहा है, तो 8 पॉइंट लगाएंगे हम, ये वाला इसका बैरल देखेंगे कि ये कौन सी लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 40, ये देखें दोस्तों 40 लिखा है, ठीक है। 40 के बाद ये 45, लेकिन 45 से एक कम है, तो कितनी है 44। तो कितना लिखेंगे 8 यानी कि 5 ये रहा हमारा। 5 के बाद 1 2 3 4 8 8.44, क्या लिखेंगे इसे 8.44, ठीक है। इसे जो हम लिख सकते हैं 8.44, इसकी जो है थिकनेस आ गई, मोटाई आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं। चलिए अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। ये देखें, इसे खोलें, इसका लॉक हटाएं और इसको खोलें। मेरे पास ये शाफ्ट रखी है, इसको भी मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ। तो हम थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे सब, क्योंकि जो है इसकी जो है चौड़ाई जो है ज़्यादा है शाफ्ट की। तो आप इसे आसानी से खोलें इस तरीके से। तो आप खोलने का तरीका आप किस तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही है, तो शायद मुझे लगता नहीं चेक हो जाएगा, फिर भी मैं खोल कर देखता हूँ। आ गई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, मैं इसको पूरा लगा देता हूँ यहाँ पर, और आप इस तरीके से पकड़ें इसे, ठीक है। तो इसको हम वापस टाइट करते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी दोस्तों ये, ठीक है। आप इसे ध्यान से इस तरीके से लगा दें, ठीक है, और यहाँ से इसे लॉक कर दें, ठीक है। बाकी तो आप इसे लॉक करके निकाल भी सकते हैं, तो मैं इसको लॉक करके जो है निकाल ही लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस हो रहा है। तो ये हमने जो है लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, और उसको हमने शाफ्ट को निकाल लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर रीडिंग पढ़ेंगे, तो देखें दोस्तों ध्यान से रीडिंग कितनी आ रही है इसकी शाफ्ट की जो है। तो अब यहाँ ये देखें, ये 20 तो पूरा हो रहा है, 20 के बाद 21 22 23 24 25 भी दोस्तों दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 मुझे तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन जो है हल्का सा दिख रहा है। तो दोस्तों 25 के करीब जो है कंप्लीट पूरा हो गया है, और ये 25 ही दोस्तों चेक कर सकता है, क्योंकि जो है आप देखा होगा तो 0 से 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर के लगभग जो है इसकी जो है मोटाई आ रही है इस शाफ्ट की, ठीक है। तो
तो ये तो दोस्तों ज़्यादा सा हो गया कुछ, दूसरा कोई चेक करते हैं। तो मैं इसको जो है वापस इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जो है अब इसकी जो है इसकी दोस्तों, हाँ इसकी हम चेक करते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको। तो इसकी हम दोस्तों ये वाली जो है चौड़ाई चेक करते हैं, ये कितनी चौड़ा है। तो माइक से भी चेक कर सकते हैं, बाकी वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं। तो वर्नियर माइक से हम कैसे चेक करेंगे, चलिए हम इसको खोल देते हैं पहले पूरा, और खोलने के बाद इसको हम यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, कहीं 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 भी हम इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे, और इसको आप निकाल भी सकते हैं बाद में टाइट करके लॉक को, और बाकी तो अब लगा चेक। तो अब हमारा क्या कितना ही रेडी, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्त, ज़रूर आपको समझ में आएगा दोस्तों। समझ में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो ध्यान से देखें आप कितनी आ रही हैं ये, आप देखें 20 कंप्लीट हो रहा है, 20 के बाद 21 22, ठीक है। थोड़ा जो है ये आया, देखा 25 कंप्लीट, 25 का 22 और 20 21 22, तो 22 जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि 22 पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे, 22 के बाद यदि यहाँ पे अगर एक कोई हमें जो है नीचे अंदर नीचे वाली संख्या, नीचे वाली लाइन दिखती, तो हम जो है 0.50 जोड़ देते हैं। अब 0.50 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दिख नहीं रही है लाइन हमें, तो 22 है। 22 के बाद अब यहाँ देखिए कौन सी लाइन इस वाली लाइन से मिल रही है इनमें से, तो यहाँ देखिए 25 26 27, तो कितना हो रहा है 22.27, इसका कितना होगा 22.27, इसका इसकी रीडिंग आ जाएगी, यानी कि इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। और दोस्तों एक बात, चलो मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ इसकी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के, तो मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। जैसे तो इसका जो है मैंने यहाँ खोल दिया, ये यहाँ खोल दिया, ठीक है। अब आप बताएं मुझे कितनी रीडिंग आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जो है दोस्तों इसमें 11, यानी कि ये देखें, ये यहाँ ये मैंने खोल दिया इतना, ठीक है। तो ये 15 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 पॉइंट, अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ऐसा तो मोबाइल में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक नीचे वाली लाइन भी दिख रही है, ठीक है। तो जब नीचे वाली लाइन दिखेगी तो हम क्या करेंगे 15.50 जोड़ेंगे, ठीक है। ये सामने देखें मैंने लिख दिया है 15.50, लेकिन अब इसको भी चेक करेंगे इस वाली रीडिंग को, तो वो कितनी आएगी। अब यहाँ देखिए कौन सी लाइन जो है ये बैरल वाली जो है कौन सी मिल रही है इसके साथ, इस वाली लाइन के साथ मिल रही है। तो यहाँ देखिए 20 21 22 23 24 और 23 में से कोई भी एक लाइन हम मिला सकते हैं। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगी वो लाइन मिला देंगे। तो हमारी कौन सी नज़दीक है, ये 24 वाली नज़दीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसे 15.50, जो 0.50 हमने जोड़ा है नीचे का आधा मिलीमीटर का, ये आपको नहीं दिखेगी शायद, मुझे तो दिख रही है क्योंकि मोबाइल में साथ ज़्यादा साफ नहीं आ रही वीडियो। तो 20.50 में हम जो जोड़ देंगे कितना, तो 0.50 में 0.24 जोड़ देंगे, तो 15.74 mm इसकी रीडिंग आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों 15.74 mm, ठीक है। आप इस तरीके की रीडिंग को ऐसे चेक करें, क्योंकि जो नीचे का खाना, अगर नीचे वाली लाइन दिख रही है तो उसका मान समझे, ये नीचे वाली लाइन दोस्तों दिखनी चाहिए जो क्रॉस कर रही हो। अगर वो नहीं दिख रही, ये यहाँ तक है, अगर इस लाइन से यहाँ तक है तो उसे नहीं गिनेंगे, लेकिन इस लाइन के बाद भी हमें कोई नीचे वाली लाइन, इस लाइन के बाद नीचे वाली लाइन मिल दिख रही हो तो उसका मान 0.50 होता है। तो 0.50 में हम जो है फिर इसकी काउंटिंग करते हैं, इनको जोड़ के लिखते हैं इस वाली लाइन में, यानी कि 15.94 इसका आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको इसी तरह, क्योंकि इस तरह के मेरे पास चेक करने का कोई वो नहीं है। अब आप यहाँ देखें मैंने मिला दिया इतना, ठीक है। अब अगर आपको दिख रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आप ये हल्की सी लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अब हमारा कितना आ रहा है, अभी देखें यहाँ पे ये रहा 10 के बाद 11 12 13, तो 13 पॉइंट, ये 50 भी जोड़ेंगे, ठीक है। 13.50 के बाद ये वाली लाइन और जोड़ेंगे, तो 35 के बाद 36 37 38, अब देखिए 38 और 39 में से कोई भी एक लाइन मिला सकते हैं। तो हमारी जो नज़दीक है वो मिलाएंगे, हमारे ये नज़दीक लग रही है। तो कितनी आ रही है यहाँ पे 35 36 37 38, तो कितना हो जाएगा जब हम जो है इसमें जो हमने कितना जोड़ा था यहाँ पे 11 12 13, 13.50 में जोड़ देंगे हम कितना, 0.50 में हम जब जोड़ देंगे तो 0.39 हम ले लेंगे इस वाले यहाँ से, ठीक है। 0.39 तो हमारा आ जाएगा 89, तो 13.89 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की रीडिंग को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। और भी वो तो दोस्तों बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारी होती है, जब आप कभी माइक्रोमीटर चलाएंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। और दोस्तों माइक्रोमीटर जो है सभी बच्चों को चलाना आना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा बहुत, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो सही नहीं बन पा रही, फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। जैसे कि मैं आपको एक बार और नॉलेज दे देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, चलिए मैं
दोस्तों मोबाइल से जो ना वीडियो में मज़ा नहीं आता बनाने में, फिर भी बनानी पड़ती है मुझे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखा सकूं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ध्यान से। जब भी कभी याद रखें नीचे की लाइन जब दिख रही हो, ठीक है, जैसे मान ली यहाँ पे आप देखें 15 लिखा, 15 के बाद एक लाइन दिख रही है दोस्तों, मुझे यहाँ पे दिख रही है छोटी सी, तो 15 के बाद कितना जाएगा 0.50, 15.50 और इसके बाद हम जोड़ देंगे 15, 16, 17, तो 17 और जोड़ देंगे, तो 50 के बाद हम जब 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 67, तो 15.67 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें नीचे वाली लाइन का मान जो है 0.50 जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद 0.50 जोड़ेंगे, 0.50 के बाद ये भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो 67 इसका आ जाएगा 15.67 यानी 15.67। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम माइक्रोमीटर को चला सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और अगर आपको समझ में ना आया तो नीचे जरूर कमेंट में लिखें, और समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Very properly understand and explain in this current video. Also, now there is no any query regarding uh, micrometer, that how to take the reading and how we are hold the workpiece between or insert between the two jaws like anvil and spindle, and how what is the application of ratchet and what is the application of barrel, and why gripping are required, or what is the function of Lochner. Okay, so based on this point of view, I think it may be very clear in your mind. Yet if anybody have any doubt, then they may definitely mention in the comment box, or they may ask anytime.